صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، اور اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں؟ یہ اعزاز نہیں چل رہے اوپر بڑے چل رہے؟ ہاں؟ کیوں نہیں چل رہے؟ پچھلی دفعہ بھی نہیں چل رہے تھے، میں نے چلوائے تھے۔ ذمہ دار حضرات کیوں توجہ نہیں کرتے؟ تو پوچھا کہ اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا، بس یہی کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں۔ اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات ہیں آپ کی زندگی میں۔ کیوں جی آپ چلیں اعزاز؟ تو یہ غیر ذمہ داری کب تک ہے؟ خیانت، غیر ذمہ داری۔ میرے سامنے بھی بیٹھنے والے اور میرے غائبانہ بھی خیانت کرتے ہیں، غیر ذمہ داری کرتے ہیں، کملی والے کے مجمع کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ خیانت، غیر ذمہ داری، غفلت کیوں کرتے ہیں؟ میں حیران ہوں، مجھے ان کے مزاج پہ حیرانگی ہے۔ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ ایک دم ماحول حبس ختم ہو گئے۔ اب پتہ نہیں کوئی شیشے کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہوں گی، وہ بھی مجھے جا کے بند کروانی ہوں گی تاکہ ویکم بنے، یعنی ہر چیز مجھے یہیں سے کرانی ہوگی۔ بے حس لوگ ہیں، احساس کی دنیا مر گئی ہے۔ سارے مضامین چھین لیتے ہیں، ان کی خیانت مجھ سے مضامین چھین لیتی ہے۔ اللہ سے جو مانگ کے آتا ہوں، ان کی خیانت میرے مضامین چھین لیتی ہے۔ کملی والے کے مہمانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور سینہ تان کے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہاں خدمت کرتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات۔ کوئی بادشاہ گزرا ہو اللہ والا، کتابوں میں 7 سلاطین کا تذکرہ ہے۔ 7 سلاطین، 7 بادشاہ ایسے ہیں جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 فقہائے مدینہ کا تذکرہ ہے جو اللہ کے ولی تھے۔ 7 بادشاہوں کا جہاں تذکرہ ہے، ان 7 بادشاہوں کی زندگی میں، کتابوں میں یا خوابوں میں، خوابوں سے مراد کوئی ایسا شخص ہو جو ان کی زندگی سے احوال پوچھے کہ آپ کی زندگی میں احوال کیا ہیں۔ کتنے ہمارے بڑے ایسے ہیں جو حدیث کی سند خود صاحب حدیث سے پوچھتے تھے،
امام ترمذی سے، امام بخاری سے، امام مسلم سے، بڑوں بڑوں سے کچھ پوچھ لیتے تھے یہ فلاں حدیث ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نزول کیا ہے، وغیرہ۔ یہ بات کوئی خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، خود امام بخاری سے پوچھ لیتے تھے خواب میں کہ یہ حدیث کیسی ہے اور اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ نے یہ حدیث کہاں سے لی تھی، وغیرہ۔ اسی طرح کچھ ایسے بھی اللہ کے دوست ہیں، گزرے ہیں، اب بھی یقیناً ہوں گے، جو خود اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اب بھی ہوں گے، اس ہستی سے پوچھ لیتے ہیں، اس ہستی سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سورۃ توبہ کی جو آخری آیت ہے اس کو آزمایا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جتنے بھی 7 سلاطین ہیں، 7 سلاطین، 7 بادشاہ گزرے ہیں، جتنے بھی، ان 7 سلاطین کی زندگی کا نچوڑ اور ان کے وظائف میں یہ چیز شامل تھی۔ ان کے جو خاص وظائف تھے، ان کے جو خاص معمولات تھے، ان کی جو خاص تسبیحات تھیں، ان کے جو خاص وظیفے اور ذکر تھے، ان خاص وظیفوں اور ذکر میں یہ سورۃ توبہ شامل ہے، یہ سورۃ توبہ شامل ہے۔ سورۃ توبہ سے مراد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ شامل ہے، ان کی زندگیوں میں شامل۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، ایک دفعہ فرمانے لگے میری زبان پہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میری زبان سے ختم ہو گئی ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں پڑھتا، 2 میں سے ایک چیز ہوگی، یا میری موت آنے والی ہے یا میری بادشاہت مجھ سے چھننے والی ہے، کیونکہ جب تک یہ آیت میری زندگی میں رہے گی میری بادشاہت مجھ سے نہیں چھن سکتی۔ پھر لوگ بلائے گئے جن کو یاد تھی، انہوں نے ان کو دہروایا، لیکن ان کو یاد نہیں ہوتی تھی، چند ہی دنوں کے بعد موت آ گئی۔ اس بادشاہ کا نام تھا سامانی، میں تاشقند میں ان کے مزار پہ گیا۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی، تو کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات میں۔ مخدوم نوح صاحب، اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اور اس سے بھی اگلی بات ہے، اس سے بھی اگلی بات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں، مجھے
ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे लोग मिले कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिखारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई। उनकी नस्लें। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन दो आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा हूं, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा हूं। तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफजलिका अम्मन सिवा, मुझे फजल, मुझे पता है मौला, मैं गनी हूंगा तेरे फजल से। व अगननी, मेहनत से नहीं। इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। व अगननी, मैं गनी हूंगा अगर, तो होगा तेरे फजल से। मुझे कलमा नसीब होगा अगर, होगा तेरे फजल से। मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर, तो होगे तेरे फजल से। और यहां तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में, यानी इन दो आयात में गिना है, गिना, जिसका तावीज आप 26 मुहर्रम को लिखेंगे। कल है 26 मुहर्रम को, गिना है इस आयत में, गिना। और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना, यह किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे। अल्लाह मेरा चाहे कख को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कख कर दे। कख, तिनका, तिनका। मेरा अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकते। 1986 में एक बाबा जी ना मुझे, वो एक मोटरसाइकिल ही होती थी, पतले पतले व्हीलों वाली, आगे प्लास्टिक का वो लगा होता था, है मैं वेस्पा नहीं, वो होंडा 50 बाबा जी चलाते रहे। होंडा 50 चलाते रहे। हाँ, मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। बाबा जी आज भी जिंदा है, और आज भी बाबा जी हैं। 86 को कितने साल हो गए? 38, 38। आज भी वो बाबा जी हैं। एक वाक्य अपना सुनाया। मैं किफायत की बात कर रहा हूं, इन दो आयात में किफायत है। कहने लगे मैं जज का रीडर हूं, एक जज है, उसमें उसका रीडर हूं, तो मेरी तनख्वाह इतने 100 है और जज की तनख्वाह इतने 1000 है। अब वही 1000 लाखों में है, अब वो 100 हजारों में है। कहने लगे, कहने लगे कि जज मुझे कहता है कि 15 तारीख के बाद, हद 20 तारीख के बाद मेरा हाथ बहुत तंग होता है। तो मैंने कहा कि मेरा हाथ तंग नहीं होता। कहा वजह क्या है? कहा मुझे बरकत मिली है। कहा वो क्या होती है? तेरी तनख्वाह तो मुझसे चौथाई गुना से चौथाई गुना ज्यादा है, थोड़ी है। तो मैंने कहा ये देखिए मेरा पेन है, इसमें मैं स्याही भरता हूं और रीडर लिखता हूं, जनाब जो फरमाते हैं मैं आपका फरमान लिखता हूं जज साहब का। इसको 24 साल हो गए इस पेन को। रब ने इस पेन में मेरी किफायत कर दी है। मैंने एक छोटी सी मिसाल
جج صاحب کو دی. یہ مجھے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, بائک پہ مجھے سنا رہے ہیں واقعہ. مجھے واقعہ, گرمی تھی, خربوزوں کا موسم تھا, خربوزے تھے, مجھے یہ سنا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں, ان دو آیات میں کفایت رکھی ہے, کفایت رکھی. غیب سے ضرورتیں پوری ہونا, غیب سے مسائل کا حل ہونا, غیبی نظام کا متوجہ ہونا, ان دو آیات میں رکھی ہے. اور پھر اللہ پاک نے ان دو آیات میں کفالت رکھی ہے. وہ کیسے؟ ایک کمانے والا ہوتا تھا, سارا گھر کھانے والا ہوتا تھا, ضرورتیں پوری ہوتی تھیں, بچ جاتا تھا. سارے کمانے والے, سارے کھانے والے, ہائے ہائے لگی ہے کہ شام اور کل کا کیا بنے گا. وہ کفالت والا ہاتھ ہٹ گیا ہے, کفالت والا ہاتھ ہٹ گیا ہے کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. ہاں, اور یہ جو آپ تعویذ 26 محرم کو لکھنے والے ہیں, یہ میرا ایجاد کردہ نہیں ہے. صدیوں سے صدیوں سے صدیوں سے اللہ کے ولیوں کا آزمودہ ہے, اور اللہ کے ولیوں کا تجربہ شدہ ہے, اور اللہ کے دوستوں نے اسے صدیوں سے آزمایا, صدیوں سے آزمایا, اور مخلوق خدا کو صدیوں سے اس سے فیض ملا, اس سے نفع ملا, اور اس سے خیر ملی صدیوں سے. آپ یہ دیکھ لیں. جو تحفہ صدیوں سے آزمودہ ہے, تو اس تحفے کو ہم کیوں بھولے؟ صرف مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. اب آپ پہلے دیکھیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. میں بالفرض اگر کہتا ہوں کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے, غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا. مجھے چاہیے تھا یہ 26 محرم کا یہ تعویذ میں اپنی نسلوں کے لیے رکھتا, جو کہ عام رواج میں ہے. پیر صاحب کا تعویذ ہے, اور پیر صاحب نے اپنے خاص خلیفہ کو, خاص خادم کو, یا اپنی نسلوں کے لیے دیا. عمومی اعلان ہے, عمومی ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارا نسل در نسل چلتا یہ عمل ہے, یہ عمل ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے. عمومی آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا, اور ہے ایسے ہی ہے. لیکن تسبیح خانے نے کوشش کی ہمیشہ, آج سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آئندہ بھی, کہ جو سینے کے راز ہیں وہ اللہ کی مخلوق اور کملی والے کے غلاموں کے سینے میں چلے جائیں. بس یہ فیصلہ ہے, کوشش ہے, دعویٰ تو نہیں, کہ سینے میں چلے جائیں. یہ بتائیں میرے کملی والے کا ہر امتی انشاءاللہ بخشا جائے گا, بخشا جائے گا. ہر مسلمان جتنے بھی ہیں اللہ ان کی بخشش کرے گا. اور یہ جس کو بخشا جائے گا, جو بھی مسلمان جتنے بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے, تو پھر وہ تو شاہی مہمان ہوئے, جنتی مہمان ہوئے. تو جنتی مہمان کو تو جنتی تحفے دینے چاہیے, اور وہ جنتی تحفہ کیا ہے؟ وہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات, یہ جنتی تحفہ. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 7 سلاطین, یہ تو ہیں وہ جن کے تذکرے ہیں, ورنہ کتنے بادشاہ ایسے گزرے ہیں. ملک مظفر ان 7 سلاطین میں نہیں, یہ ایک علاقے کے بادشاہ تھے جن کے نام پہ مظفر نگر, جن کے نام پہ مظفر آباد, مظفر نگر یو پی, مظفر آباد کشمیر, مظفر گڑھ ملتان کے ساتھ. ملک مظفر بادشاہ تھے, بڑے بڑے بادشاہ تھے, اور صرف بادشاہ نہیں تھے, ولایت کے تاجدار بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے. بڑے ان کے واقعات ہیں. اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے, اس جیسے کتنے بادشاہ گزرے. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ 52 سال حکومت کی, اور اللہ کے ولی تھے. اور کتنے لوگ ہیں.
हर बादशाह की जिंदगी के मामूलात में है ये, हर बादशाह की जिंदगी के मामूलात में, हर बादशाह की जिंदगी के मामूलात। और ये आयत उनकी जिंदगी के मामूलात में, किसी की जिंदगी में एक दफा, किसी की 100 दफा, किसी की 1000 दफा, किसी की कितनी बार, उनके मामूलात में है। मैंने अर्ज किया ना, सामानी एक बहुत बड़ा कबीला गुजरा है, बादशाहों की एक लड़ी गुजरी है, उनके बादशाह दर बादशाह, दर बादशाह कि मेरे मुंह से ये आयत नहीं निकल रही, भूल गई है। और याद दिलाने की कोशिश भी की तो कोशिश की, नहीं निकल रहे। आखिरकार यह आयत जब नहीं निकली तो फरमाया फिर लगता है वक्त, और वक्त आ गया, वक्त आ गया। एक साहब, एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, उन्होंने फरमाया कि मैं देखूं लौहे महफूज में इस आयत को किन हुरूफ से लिखा गया है, लौहे महफूज में। तो फरमाया मैंने देखा कुरान के कुछ हिस्से हैं जो लौहे महफूज में खास लिखे गए हैं। सारा कुरान खास है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो खासुल खास हैं। उनमें फरमाया सूरत फातिहा और सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, ये खासुल खास, ये खासुल खास। जिन्नात के यहाँ, जिन हस्तियों का जिन्नात से वास्ता और ताल्लुक है, उनसे सुना है कि जिन्नात के यहाँ इस आयत की बड़ी कीमत है और जिन्नात के यहाँ इस आयत के बड़े कमालात हैं। मैं आपसे थोड़ी देर के बाद इस आयत के फायदे, इस आयत के नफे और इस आयत के कमालात सुनूंगा इंशाल्लाह। जिन्नात के यहाँ इस आयत के बड़े फायदे, अजीब फायदे, अजीब फायदे और अजीब नफे। और जिन्नात इस आयत को बहुत पढ़ते हैं, जिन्नात। यहां तक ये जिन्नात इस आयत को पढ़ते हैं, आप गौर से सुने, यहां तक पढ़ते हैं जिन्नात, यहां तक पढ़ते हैं, आप हैरान होंगे, यहां तक पढ़ते हैं कि करोड़ों दफा इस आयत को पढ़ लेते हैं। जितनी उनकी उम्र है उतनी उनकी तादाद है। फिर तादाद भी ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है, ताकत के मुताबिक, लफ्ज गौर से सुनिएगा, ताकत के मुताबिक तादाद बढ़ती है। जितनी ताकत होती है, जितनी कुव्वत होती है, उतनी तादाद बढ़ती है। करोड़ों 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 की तादाद में जिन्नात इसको पढ़ते हैं। फिर इस आयत में एक तासीर और है, ये मिट्टी को सोना बनाती है, मिट्टी को सोना बना देती। हमारे एक जानने वाले थे, मुंशी असलम, पुराने पटवारी, रिटायर थे। एक जगह है वही जोगियां, वहां रहते थे। बूढ़े थे तो उनको सोना बनाने का बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो लोग समझते थे शायद इनको सोना बनाना आता है, तो फिर दूर दूर से लोग उनका नाम, उनकी आवाज सुन के गांव का सफर करते थे, बड़ा दूर का। उस वक्त वो इतनी ट्रैफिक, बसें वगैरह थी नहीं, पहुंचते थे, पैदल का सफर करते थे, फिर मुंशी साहब के यहाँ हफ्तों दिनों रहते थे। एक दफा कहने लगे कि एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा कि सुना है आप सोना बनाते हैं, मैं भी बनाता हूं। मैं छटाकों में बनाता हूं, आप धड़ियों में बनाते हैं, धड़ी धड़ी कहते हैं 5 किलो को। मैं 50 ग्राम के करीब बनाता हूं, आप 50 किलो 5 किलो के करीब बनाते हैं। बनाता मैं भी हूं, बनाते आप भी हैं, मुझे 5 किलो वाला नुस्खा दे दें। तो मैंने कहा बिल्कुल दूंगा, पहले हम आपस में तारुफ ना कर ले। बिल्कुल तारुफ कर ले। कहाँ से आया? फला जगह से आया। अच्छा, माशा, जेब में पैसे हैं? उन्होंने कहा हाँ, आप परेशान ना हो, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगा। अच्छा ठीक है। घर का खर्चा छोड़ के आयो? हाँ। कितना घर है, क्या है घर में? कस को कुछ हालात खराब हैं, ये है वो है, घर के हालात, जिंदगी के हालात। तो इन्होंने जूता उतार लिया, 3 4 5 उसको रखे।
उन्हें कहा तू कहते हैं मैं सोना बनाना जानता हूं, घर के तेरे हालात खराब हैं। कहा कि मुझे जो आके कहता है मैं सोना बनाना जानता हूं, मैं उसकी शक्ल देखता हूं, हुलिया, अगर उसका हुलिया बर्बाद होता है तो वो कहते हैं मैं ठीक हूं, वाकई बनाना जानता है, और उसका हुलिया ठीक होता है तो समझ ले नहीं बनाना जानता। क्योंकि सोने बनाने का ताल्लुक है घर फूक तमाशा देख, सारा घर फूक दे, फूकने से मुराद आग लगा दे, फिर तमाशा देख। और सोना बनाने का नुस्खा उन्होंने जो बताया था वो मैं बता देता हूं। हरमल, परमल से पत्ती, हरमल, हरमल बूटी होती है, परमल बूटी होती है, से पत्ती तीन पत्तों वाली बूटी होती है। हरमल परमल से पत्ती, धड़ी तरह में ते रत्ती तैयार। धड़ी कहते हैं 5 किलो तांबे पे एक रत्ती डाल और सोना, हरमल, परमल और से पत्ती, ठीक, और धड़ी तरह में ते रत्ती, एक रत्ती, ये दवाई डाल, बना सारा तांबा सोना, और क्या जरूरत है। उम्र के आखिरी हिस्से में, उम्र के आखिरी हिस्से में एक दफा मुंशी साहब, वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे, बैठते थे, दिन गुजारते थे सारा। सुबह का टाइम आता था बस का, फिर शाम का बस जाता था, वो चले जाते थे, सारा दिन गुजार के जाते थे। एक दफा कहने लगे ये अल्फाज हैं मेरे सुने में, आके सारी उम्र जख मारे कुछ नहीं लथा, सारी उम्र मैंने वक्त ज़ाया किया, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं हुआ। कहने लगे एक दफा किसी ने मुझे बताया ये सोना इस तरह बनता है, मैंने तांबे का देगचा लिया, उसमें सामान डाला, उसको ऊपर से बंद किया, ऊपर आटा लगाया, आटा लगा के ऊपर मिट्टी लगाई, और मिट्टी लगा के फिर मलमल का कपड़ा मिट्टी में भिगोता गया, उसके ऊपर मलता गया मलमल का कपड़ा, उसका मुंह बंद कर दिया, खुश किया, तांबे की देगची के नीचे देगचा था, मुझे दिखाया भी, उसका तलवा निकला हुआ था, देगचे के नीचे आग दी, उसने जो चरख मारा और वो फटा, नीचे तलवा निकला गया, ऊपर से वो ऊपर का ढकना उड़ा गया, वो ढकना जो टूटा वो सारे टुकड़े में लगे और मैं जख्मी हो गया। कहने लगे ये सोना बन रहा है। और कहा कि एक दफा ऐसा हुआ, किसी ने सोना बनाने का नुस्खा बताया, एक दूसरे साहब कहने लगे मेरे वालिद साहब को, मेरे वालिद साहब ने कहा कि मैं चीनी वाली बनाने वाली मशीन बनाऊंगा, चीनी बनाने वाली। कहा चीनी बनाने वाली मशीन जो टूटी, किसी बंदे की दोनों टांगें कटी गई हैं, टांगें उधर अब्बा इधर, घर फूक तमाशा देख, सोना बन रहा है। जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहने लगे मैंने सारी जिंदगी ज़ाय की है, मुझे अगर पता होता ना कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत में कायनात के सोने बनाने के राज हैं, कि मिट्टी को हाथ लगाओ तो मिट्टी सोना बन जाता है, अब तक मैं 1 करोड़ से ज्यादा ये आयत पढ़ चुका होता, मैं दिन रात एक कर देता, दिन रात क्या कर देता, एक कर देता दिन रात, और मैं इसी आयत को पढ़ता, पर मैंने जिंदगी से कर दी। बेटा था इकबाल, उसको कहने लगा बेटा मैं बूढ़ा बहुत हो गया हूं, ख्याल करना, सोना बनाने वाली इस जिंदगी में ना जाना, वो लफ्ज कहते थे ठरक, सोना बनाने वाली ठरक में ना जाना, इस जिंदगी में ना जाना बेटा, अगर कभी सोना बनाने का शौक भी पैदा हो तो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत को दिन रात पढ़ना, सुबह शाम पढ़ना, पल पल सांस सांस पढ़ना, और हर लम्हा हर लहजा पढ़ना, और सैकड़ों हजारों लाखों पढ़ना। इसी में सोना भी है, इसी में चांदी भी है, इसी में हीरे भी हैं, और इसी में जवाहरात भी। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपको ये 2 आयतों की बरकत, इन 2 आयत की खैर और इन 2 आयत की तासीर आपके जियों में उतरी गई है, जियों में उतर गई है। ये बात गौर से सुनिएगा, जियों में उतर गई है, दिलों में उतर गई है, आपके जियों में उतर गई है।
آپ کتنے خوش قسمت ہیں. اس لیے میں آتے ہی حیران ہوا، یہاں بڑے بڑے کلندر اور ذمہ دار بیٹھے ہیں، ان کو محسوس نہیں ہوا تھا کہ ایگزاسٹ نہیں چل رہے، حبس ہے، ان کو پتہ نہیں کیوں محسوس نہیں ہوا. میں حیران ہوں. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں تسبیح خانے کی خدمت کرنے والوں کو، جان مال وقت لگایا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ سے دل دماغ اور دعا منواؤ. اللہ ہمارے دل دماغ اور دعا کے تالے کھول. دل دماغ اور دعا کے جو تالے لگے ہیں اللہ کھول، منواؤ، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی. جب تالے لگے ہوتے ہیں پھر کچھ نظر نہیں آتا. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ کے دلوں میں اتر گئی ہے کہ اس آیت کے اندر کمالات ہیں، اس آیت میں برکات ہیں. یہ بھی خوش قسمتی ہے. حق کا واضح ہو جانا، غور سے سنیے گا یہ لفظ، حق کا واضح ہو جانا کہ حق حق ہے، یہ کسی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ ساری زندگی گزار کے موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، اس کو حق نظر نہیں آتا، اور حق کے غیر میں زندگی گزارتا ہے اور حق کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے، اور اسی زندگی میں ساری بساط لپیٹ کے چلا جاتا ہے، حق تک نہیں پہنچتا. جس کا تسبیح خانے کا حق ہونا جس کے دل میں آ گیا ہے، تسبیح خانے کا حق ہونا جس کے دل میں آ گیا ہے، اور شیطانی وسوسوں کو پھر اس نے جگہ نہیں دی، تو سمجھ لیں دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. خوش قسمت کہ اس کے دل میں تسبیح خانے کا حق ہونا آ گیا ہے، اور پھر وساوس کو جگہ نہ دی. یہ بھی خاص طور پہ میں بات کہہ رہا ہوں، وساوس کو جگہ نہیں دی. بدگمانیاں، شک، وساوس، تبصرے، سنی سنائی، ان کو جگہ نہیں دی. تسبیح خانے کا حق ہونا اس کے دل میں اللہ نے اتار دیا. اس لیے فرمایا اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنی خیر کی سمجھ دیتا ہے. اس کو پھر اللہ وہ سمجھ دے دیتا ہے جو اس کو خیر کی راہوں کی طرف لے کر چلتی. یہ تعویذ صدیوں سے آزمودہ ہے، اور صدیاں ہی اس تعویذ کو لے کے چل رہی ہیں. میں تو ڈاکیا ہوں، صرف سفیر ہوں. میں نے بتا دیا، آپ چیز تو میری نہیں ہے، کلام اللہ کی، وہی مدینے والے پہ، کملی والے پہ اتری، بتانے والے آل رسول، اصحاب رسول، پہنچانے والے محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین. صدیوں سے ہم تک یہ تواتر سے سچی چیز پہنچی ہے. پھر ان کے اپنے تجربات، پھر ان اپنے مشاہدات ہیں، اور ان تجربات اور مشاہدات کو بتانے والے بھی سچے، وہی بھی سچی، لفظ بھی سچے، حروف بھی سچے. سچے حروف، سچے الفاظ. پھر یہ حروف سے مل کے بنی ہے. چھوٹے چھوٹے حرف جو ہیں، جو الف با سے لے کر یا تک چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، ان سے مل کر یہ آیتیں ملی ہیں، اور ان سے مل کے بنی ہیں. ان حروف سے مل کے بنی، ان حروف سے مل کے بنی. اور وہ حروف کتنے ہیں؟ آئے میں آپ کو ذرا بتاؤں، آپ ذرا غور سے سنیے گا. الف پورے قرآن میں 48,872، سب سے زیادہ پورے قرآن میں الف ہے. الف سب سے پہلا، سب سے زیادہ کیا ہے؟ الف. تا پورے قرآن میں 5,791، 5,791. جیم پورے قرآن میں 3,358. خا، خا 2,482. زا 1,597. زال 1,597. زا 1,683. شین 2,489. زود 1,696. زوئیں جسے زا کہتے ہیں 882. سب سے کم حروف اس کے ہیں. سب سے زیادہ حروف کس کے ہیں؟ الف کے. غین 1,220 پورے قرآن میں. کاف 6,813. لام 34,310. نون 27,838. ہا 26,535. با
11,420, سا 1405، ہا 1927، دال 5,993، را 12,055، سین 6,802، 6,000، سواد 2,492، تو 1,274، آئین 9,931، فا 8,228، کاف 10,380، میم 28,922، واو 25,352، یا 25,717۔ آپ کا سارا لقد جاءکم سے آخر تک فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم تک یہ سارے حروف ہیں، اور یہ سارے حروف مل کے آپس میں یہ دو آیات بنی ہیں، اور ان کی طاقت کہ ساری عمر سونا بنانے کی محنت کرنے والا کہتا ہے زندگی میں نے ضائع کر دی، اور اے کاش کہ میری زندگی میں سورۃ توبہ کی آخری دو آیات آ جاتی، میری زندگی میں یہ دو آیات آ جاتی، میں مٹی کو ہاتھ لگاتا تو سونے کا بن جاتی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے مشاہدے میں اس کی کیا تاثیر آئی ہے؟ کون بتائے گا؟ آپ کے تجربے میں اس کی کیا تاثیر آئی ہے؟ آپ نے اس کا کیا فائدہ پایا؟ تعویذ جو لکھا، ہر سال لکھتے ہیں 26 محرم کا، اس سے آپ نے کیا نفع پایا؟ 26 محرم کے تعویذ سے کتنا فائدہ پایا؟ کیا نفع پایا؟ کون بتائے گا؟ اچھا ٹھہر جائیں، میں پہلے ایک دو چیزیں بتا دوں پھر پوچھتا ہوں۔ ایک تو یاد رکھیے گا، اس آیت کی جو شروع ہوتی ہے لام سے شروع ہوتی ہے، عظیم میں آخر لفظ میم ہے اور میم پہ انتہا ہوتی ہے۔ لفظ لام کی جو تاثیر ہے، اور لام کے بعد اگلا لفظ حرف کون سا آتا ہے؟ ہاں؟ اور واو کے بعد، اور لام سے پہلے کون سا حرف آتا ہے؟ میں کہتا ہوں لام کے بعد میم آتا ہے، حروف تہجی کی ترتیب میں جائیں اللہ والو، حروف تہجی الف با کی اگر ترتیب میں جائیں تو لام کے بعد کون سا حرف آتا ہے؟ میم آتا ہے نا، میم آتا ہے۔ اس میم کو اور لام اور میم کو جمع کریں تو ساری کائنات میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میم محمد ہے، میم محمود ہے، بہت میم کی کائنات میں راز ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اس تعویذ کو لکھتے ہوئے جتنا یقین ہوگا، اور اس تعویذ میں اللہ نے جو دو آیات میں حروف جمع کیے ہیں نا، خفیہ حروف جمع کیے ہیں اللہ نے ان دو آیات میں، وہ انوکھے حروف جمع کیے ہیں۔ میرا جی یہ چاہتا ہے میں اجتماعی طور پہ بیٹھ کے ان آیات کو ہم بیٹھ کے دہرائیں۔ وہ کیوں؟ اس کی وجہ سن لیں۔ آپ میں سے کسی کو آتی ہوگی، کسی کو نہیں آتی ہوگی، جس کو آتی ہوگی اور جس کو نہیں آتی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس کی تاثیر پا چکے ہوں گے۔ میں وہ فوت ہو گئے منیر صاحب رحمت اللہ علیہ، اگر آپ ان کے سامنے بیٹھتے آپ نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ شخص ہے جتنے اتنے عرب سورۃ قل ہو اللہ پڑھی، اتنے عرب کلمہ پڑھا، اتنا عرب درود پاک پڑھا، اور بڑے وظائف پڑھتے تھے، عرب کروڑ نہیں، آپ نہیں پہچان سکیں گے، اور ہم پہچان نہیں سکیں گے کیا اس نے اتنا پڑھا، وظائف تو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب وہ ایسے سورۃ قل ہو اللہ ایک دفعہ پڑھتا تھا، ایک پوری جماعت آ جاتی تھی، فرشتوں کی، اولیاء جنات کی، صالحین کی، اس کے ساتھ آ کے پڑھنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ صرف اسی کو نظر آتی تھی، وہ صرف اسی کو نظر آتی اور کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔
अहल अल्लाह सालिहीन की पूरी जमात, पूरी एक टीम आ जाती थी, फरिश्तों की, औलिया जिन्नात की और नेक अरवाह की एक पूरी टीम आ जाती थी और उसके साथ पढ़ना शुरू कर देती थी। फिर फायदा क्या होता था? फायदा यह होता था कि वो उसकी तादाद पल में लाखों से ज्यादा निकल जाती थी। फौत हुए तो मैं उनके घर ताजियत के लिए गया, तो मैंने सबसे पहले जाते ही कहा कि वो तस्बीह कहाँ है। उस तस्बीह के वो कई दफा धागे बदल चुके थे कि धागे घिस जाते थे। मैं गाड़ी में तस्बीह लेके बैठा तो मेरे साथ एक साहब बैठे थे, कहने लगे ये तस्बीह जरा दिखाएं। मुझसे कहने लगे तस्बीह मेरे हाथ में खुद ब खुद चल रही है और मेरे मुंह से जिक्र खुद ब खुद जारी हो गया, और ये हकीकत यही है, वो खुद ब खुद चल गई और मेरे मुंह से जिक्र खुद ब खुद जारी हो गया, खुद ब खुद जारी हो गया। कुछ लोग मजमे में ऐसे होते हैं जो उनकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं होती, या हैसियत होती है तो हम दुनियादाराना हैसियत होती है, ठीक है दुनियादार आदमी है, लेकिन उस करीम शहनशाह की बारगाह में उसकी बड़ी हैसियत होती है, उसका बड़ा मकाम होता है। जब सारा मजमा किसी वजीफे को बैठ के पढ़ता है, सारा मजमा, तो फिर एक दूसरे की तासीर एक दूसरे में मुंतकिल होती है, एक दूसरे की तासीर एक दूसरे में मुंतकिल होती है, मुंतकिल होती। और जब मुंतकिल होती है तो जिसको तासीर नहीं मिली उसको तासीर मिल जाती है, जिसको सवाब नहीं मिला उसको सवाब मिल जाता है। और मजमू में एक फायदा और भी होता है, अगर कि कोई इस काबिल है, अब ये बात जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी बड़ी बारीक बात है, हसास बात है। कोई इस काबिल होता है, कोई इस काबिल होता है कि उसका वजीफा मुंह पे मार दिया जाता है। अल्लाह कहते हैं तेरी पेशानी पे शकावत लिखी है, बदबख्ती लिखी है, तेरी लकीरों में जुल्मत लिखी है, तो उस मजमे की बरकत से अल्लाह पाक उसकी भी कबूल कर लेते हैं। अल्लाह पाक उसके भी कबूल कर लेते हैं। अच्छा, कुछ मजमे ऐसे होते हैं जिन मजमों में बैठे वाला बंदा अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसी तौबा करता है या ऐसा रुजू करता है कि जो उसकी वजह से कबूलियत रुकी होती है और उसी की वजह से फिर हो जाती। अल्लाह के नबी दुआ कर रहे, बारिश बारिश खुश्क साली हो गई, पर मैं आपके मजमे में एक ऐसा बंदा है जिसने सारी जिंदगी, अल्लाह पाक फरमाने लगे ऐ मेरे नबी, सारी जिंदगी उसने मुझे नाराज किया है, इसके होते हुए कभी दुआ कबूल नहीं होगी, इसको कहें मजमे से निकल जाए फिर दुआ कबूल हो। आपने ऐलान फरमाया इस मजमे में जो शख्स भी है जिसने सारी उम्र अल्लाह को नाराज किया, वो निकल जाए, उसकी वजह से बारिश रुकी। अब उसके निकलने का इंतजार हो रहा, कोई इधर देखे कोई इधर देखे कोई इधर देखे। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मिल बैठ के इसे पढ़ें, गौर से समझेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि हम मिल बैठ के इसको पढ़ें। अब उसके निकलने का इंतजार हो रहा, थोड़ी ही देर हुई बादल आए और बारिश शुरू हो गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि बंदा निकले, बंदा तो नहीं निकला और बारिश शुरू हो गई। वही आई कि मेरे हबीब, मेरे नबी, मेरे रसूल, मेरे पैगंबर, जिसकी वजह से रुकी हुई थी उसी की वजह से हुई थी। जिस वक्त आपने कहा ना उसे निकल जा, तो उसने उसी वक्त अल्लाह की तरफ रुजू किया कि मौला सारी उम्र तो तूने पर्दे रखे हैं, आज पर्दा फाश होता है, बस अब तो मेरा सखी, मेरा शहनशाह, माफ कर दे, तौबा करता हूं और तौबा भी आखिरी दर्जे की इंतहा पे करता हूं, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। और कहा उसने माफी कोई ऐसी मांगी है कि उसकी माफी की बरकत से सबकी माफी कबूल और उसी की वजह से बारिश हो गई। या अल्लाह,
उसका दीदार ही करवा दे, उसे दिखाई दे। पर मैं जब दोस्त नहीं था तो मैंने उसको छुपाया, अब तो दोस्त बन गया, अब तो और उसके पर्दे रखूंगा, क्यों उसको दिखाऊं। बाज़ औक़ात मजमू में पढ़ने से वो चीजें मिलती हैं जो बज़ाहिर अक्ल इंसानी में नहीं आती। मजमे में वो चीजें मिलती हैं जो बज़ाहिर सोच में नहीं आती। मजमे में कोई यकीन वाला, कोई एतमाद वाला, कोई दर्द वाला, कोई सोच वाला, कोई सोच वाला, कोई जज्बे वाला, कोई ऐसा होगा जिसने इस आयत को सैकड़ों पढ़ा होगा, हजारों पढ़ा होगा, लाखों पढ़ा होगा। कहने लगे एक साहब, एक साहब मजार के पास गया तो मैं कलमा पढ़ के उनको हदिया करने लगा। कलमा पढ़ा, फिर दरूद हदिया किया, फिर सूरत इखलास हदिया की। तो मुझसे कहने लगे सारे तोहफे हैं, एक तोहफा ऐसा है जो मैं जिंदगी भर पढ़ता रहा, वो मुझे दे दो, मुझे कोई नहीं देता। पूछा कौन सा? कहा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, ये दुनिया में भी जन्नत बना देती है, कब्र को भी जन्नत बना देती है, मुझे ये पढ़ के दे दो। तो कहने लगा मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो साहब कहने लगे, कहा मैंने बस पढ़ना शुरू कर दिया और इसको पढ़ते पढ़ते मैं खुद डूब गया। कोई ना मुझको याद रहे, तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। तुझ पे सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। बस ये कैफियत हो गई। और कहा मैं ऐसा इस पढ़ने में फना हुआ, मेरे सामने कब्र के नक्शे सारे हट गए और कब्रिस्तान का नक्शा आ गया। किसी का छोटा घर, किसी का बड़ा घर, किसी का छोटा निजाम, किसी का बड़ा निजाम, और यह नक्शा मेरी जिंदगी में ऐसे खुलता चला गया। और किसी की कब्र में राहत, किसी में फूल, और किसी की जिंदगी में धूल, और कहीं जिंदगी में आतिश। ऐसे मेरी नक्शे सामने खुलते चले गए। और कहा ना मालूम मैं कितनी देर बैठा रहा, कितनी देर बैठा रहा, कितनी देर बैठा रहा। और कहा कि ज़ोहर की अजान हुई तो मुझे पता चला कि मैं तो तकरीबन 4-5 घंटे तक मुराकबे में बैठा रहा। पुराना कब्रिस्तान था और पुराने कब्रिस्तान सारे के सारे नीचे के नक्शे मेरे सामने आ गए। और मेरी आंख खोली तो बस महसूस हुआ कि मैं ये आयत ही पढ़ रहा था और इस आयत को पढ़ के उन्हें हदिया दे रहा था। और इस आयत ने मुझ पे कश्फुल कबूर खोल दिया, सारा कश्फ, कब्रों का कश्फ, ज़ेरे जमीन कायनात का कश्फ, आलम में बरज़ख का कश्फ। ये बताएं, फरिश्तों को अल्लाह ने मेरी आंखों से, आपकी आंखों से ओझल रखा है, अगर वही अल्लाह पर्दे हटा दे क्या कादिर नहीं है? अल्लाह ने जिन्नात को हमसे पोशीदा रखा है, अल्लाह वही पर्दे हटा दे क्या कादिर नहीं है? बोले नहीं। हाँ, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे, अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, तो हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे कादिर है। तो कहने लगे, और साहिब मजार जिसने मुझे ये वाकया सुनाया, कहने लगे, मुझसे फरमाने लगे, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मुझे पढ़ के हदिया दो। कहा बस मैं फिर पढ़ना शुरू हो गया। दोनों आयत एक बार खत्म होती थी, दूसरी बार खत्म होती थी, तीसरी बार पता नहीं कितना पढ़ा, घंटों पढ़ा, घंटों, और मुझे अपने वजूद की खबर ना रही। जोहर की अजान हुई तो साथ बैठने वालों ने कहा कि जी आपने तकरीबन 5 घंटे एक ही कैफियत में बैठे रहे, कोई ना मुझको याद रहे। फना, फनाइयत, ये तोहफा आपको मिला है जिंदगी का, ये तोहफा मिला है जिंदगी का। और इस तोहफे में अजीब निजाम है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, जिनसे सोहरवर्दी सिलसिला हमारे ये हजरत बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी सिलसिला है, और बड़ी बड़ी हस्तियां सोहरवर्दी सिलसिले की हैं। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, जब भी नक्श लिखते थे यही कुछ लिख के दे देते थे।
उनके नक्श में तासीर होती थी, ताकत होती थी। सोचें तो सही, हमें कितना बड़ा तोहफा मिला, हमें कितनी बड़ी ताकत मिली, हमें कितनी बड़ी तासीर मिली, हमें कितना बड़ा कमाल मिला, कितना बड़ा निजाम मिला। क्या ख्याल है, कुछ तादाद रोजाना मुकर्रर नहीं कर लेनी चाहिए कि हम इसको थोड़ा सा ही पढ़ लिया करें? 7 बार ही पढ़ लें सुबह शाम, 7 बार सुबह शाम पढ़ लें, 40 बार सुबह शाम पढ़ लें, एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ लें। कितने खुशकिस्मत होंगे अगर उन्होंने कोई वजीफा जारी नहीं रखा हुआ, तो कोई वजीफा अपनी जिंदगी में जारी रखना चाहते हैं और कोई वजीफा अपनी जिंदगी में वजीफा बनाना चाहते हैं, कोई चीज ऐसी है जो कहते हैं हमें दे दें, तो कितने खुशकिस्मत होंगे जो इसको 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लेंगे। जब वो शेख मुनीर साहब बैत हुए ना, तो किसी महकमे से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनसे कहा एक तस्बीह दरूद शरीफ की पढ़ लिया करें, एक तीसरे कलमे की पढ़ लिया करें, एक इस्तिगफार की जो हमारे सिलसिले की तस्बीहात हैं। तो मुझसे कहने लगी इतना ज्यादा कैसे पढ़ सकूंगा? तो मैंने कहा अल्लाह दिल खोल देगा, अल्लाह कर देगा इंशाल्लाह। फिर वही थे जिन्होंने अरबों पढ़ा, अरबों पढ़ा। मुझसे एक दफा गलती हुई मुझसे, ये उन्होंने असल में जनरेटर एग्जॉस्ट चलाया होगा ना, तो एग्जॉस्ट चलाने में उन्हें झटका लगा होगा, इसलिए थाली गिरी, उन्हें एग्जॉस्ट याद आया होगा मजमे में बैठे हुए बेहिस्सों को भी, उनको भी, कि कमली वाले के मेहमानों का एहतराम क्या होता है। तो क्या कर रहा था बात, मुझसे गलती हुई, मैंने उनका खत अबकरी में छाप दिया, और खत लिखते थे मुझे, अब भी वो डाक में खत होंगे कि मुर्शिद मेरा इस महीने का, इस 2 महीने का इतना जिक्र हुआ, इतनी तस्बीह हुई, इतना अमल हुआ, वो खत लिखते थे। मैंने कहा ये अबकरी में छाप दो। गालिबन 7-8 की बात होगी, 2007-8, 6-7-8, बस अंदाजा शायद इससे। वो तो मुझे जो फोन आए, ओहो, बाद में एहसास हुआ खासा दी गल आमा सामने करनी अच्छी ना ही, लोगों का बर्तन नहीं था, भांडा छोटा था, बर्तन छोटा था। ये क्या धोखा छाप दिया, क्या फरेब छाप दिया, ये ऐसा मुमकिन है? वाकई मसाल मुमकिन तो नहीं है, वो भी सच कह रहे हैं। इसलिए तो मैं अपनी गलती कह रहा हूं कि मैंने गलती की, वो अबकरी में छाप दी खत। अच्छा, मैंने इसलिए नियत से छापा कि लोगों को भी तरगीब हो, लोग भी ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह का नाम लें। जिन हजरात का कोई जिक्र मुकर्रर नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनका जिक्र मुकर्रर है, रोजाना उन्होंने इतना पढ़ना है, वो तो उसी में फना हो। जिनका कोई अगर जिक्र मुकर्रर नहीं है, अगर वो फैसला कर ले, वो फैसला कर ले कि हमने 1 करोड़ दफा पढ़ना, 1 करोड़, हाँ कोई मसला नहीं है 1 करोड़। अगर मौत भी आ गई तो अल्लाह करोड़पतियों में शामिल कर देगा। कौन से करोड़पति? आखरत वाले करोड़पति, जो आखरत के करोड़पति थे, और आखरत के अरबपति करोड़पति जुनैद बगदादी, पीर पीर गिलानी, पीराने पीर, बड़ी बड़ी हस्तियां, ये आखरत के करोड़पति थे, ये आखरत के करोड़पति, करोड़ आखरत के। करोड़ की तो अब हैसियत है, पहले तो लफ्ज लाखों दरूद लाखों सलाम लफ्ज होता था, लाख कोशिश की, गौर से समझे फिक्र, लाख कोशिश की पर ना माना, वो लाख बड़ी बात होती थी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की नात है, लाखों सलाम, लाख कोशिश की, लाख मेहनत की। हमारे एक दोस्त थे, उनका नाना था, उसका नाम था नाना लाखापति। मुझे कहते थे नाने लाखापति को जाके सताते हैं। मैं तो एक तरफ बैठा होता था, नाना लाखापति दुआ कर रहा होता था, दुआ करता कहता था नाना
मैं अल्लाह को जाके कहूंगा अल्लाह तेरी इबादत कबूल न करे, मैं कहता हूं करे वो जारियां करे, तेरी मर्जी, ना कहना ना कर। मैं हजूर को जाके कहता हूं तेरा दरूद ना सुने, लगता है ऐसे कि हजूर के साथ पता नहीं उसका ताल्लुक होगा। ओहो, नाने की मैंने जो जारियां देखी थी ना, मालूम अब एहसास होता है नाना का अल्लाह के साथ ताल्लुक जुड़ा हुआ था। वो अल्लाह की नाराजगी पे बेचैन हो जाता था, वो हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी पे बेकरार हो जाता था। नाना, मैंने पूछा नाना लाखापति को है? कह रहे हमारे नाने के पास लाख रुपया था उस दौर में, लाख रुपया था, लाख रुपया था। जब आने का 5 किलो घी, देसी घी आता था, नाने के पास लाख रुपया था। 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख। तो आप इस आयत को 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर लें, इंशाल्लाह। तो कहते हैं एक बाबा जी थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। हाजी साहब थे, उनके सामने से कोई नहीं गुजरता था। मुझे 4 दिन उनके पांव सीधे करने की, जूतियां सीधे करने की सादत मिली, खिदमत में हिस्सा था। अभी चंद साल पहले फौत हुए। कई अरब रुपए का मंसूबा था, उसके चीफ थे, उसके चीफ थे। एक दफा मुझसे कहने लगे लाहौर में दूर जंगल में ही कोई वापड़ा टाउन बना है, उसमें मुझे 1 कनाल का प्लॉट मिला है, उसकी मैं किस्तें कैसे अदा करूं? जंगल में ना वापड़ा टाउन है कोई दूर, 1 कनाल का प्लॉट मिला है। चीफ होते थे उस दौर में, पजीरो पजारो, उनके पास गाड़ियां होती थी, लेने होती थी। मुझसे 600 रुपया, कभी 2000 उधार ले जाते थे। हैरान कौन बात है, उधार ले जाते थे 200, कभी 600, कभी 500, कभी 1000। एक दफा फरमाने लगे घर के पंखे नहीं है, वो पैसे जरा दे दे, मैं फिर दे दूंगा, तनख्वाह आएगी। और फिर मुझे तनख्वाह में दे गए। तो कहा कि कोई दिन ऊपर तो नहीं हुआ, वादे के मुताबिक दे गए। ये जिंदगी थी एहतियात की। और गाड़ी अगर सरकारी इस्तेमाल करते थे, मैंने अपने हाथों से मीटर लिखते देखा, गाड़ी का इतना मीटर खर्च किया, इतना पेट्रोल उसमें डालना है। और दफ्तर का सरकारी कलम इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो सरकारी कागज है, सरकारी कलम। अजब इंसान थे, अजब इंसान थे। तो आप फैसला कर लें कि आप इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ेंगे। उनके सामने लोग इंशाल्लाह नहीं कहते थे, कोई उनके सामने गुजरता नहीं था, जिसको देख लेते थे वो कबूल हो जाता था। इंशाल्लाह नहीं कहते थे बंदे उनके सामने। आप तो कबूल हो जाएं, और क्या सादत है। क़यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे मेरे बंदे तूने नेकी की थी या अल्लाह तूने तौफीक ही नहीं दी थी? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तू नियत कर लेता ना, मैं तुझे तौफीक दे देता। मेरे बंदे तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। तू नियत कर लेता, मैं तुझे तौफीक दे देता। नियत तो कर ले। अगर आपका कोई वजीफा तायन नहीं है, उसमें तायन नहीं है, तो आप चाहते हैं कि अबकरी कोई तस्बीह खाना मुझे कोई वजीफा दे दे, तो इस वजीफे को दिन पढ़ें, रात पढ़ें, वजू बे वजू पढ़ें, इस आयत मुबारका को, इन दोनों आयत को याद कर लें, बस याद कर लें। अच्छा, इस आयत में दीदार मुस्तफ़ा 100%, 100% है इंशाल्लाह। कमली वाले का दीदार, आले रसूल के साथ मुलाकातें, असहाब रसूल के साथ मुलाकातें, इस आयत मुबारक में अनोखा कोई राज है, अनोखा कोई निज़ाम है। मैं तो चाहता हूं कि मजमा बैठ के इसको पढ़े थोड़ा सा, 7 दफा अगर हम बैठ के पढ़ लें। कितनी बार? 7 बार। अगर हम बैठ के इसको पढ़ लें और इस नीयत से बैठ के पढ़ें, इस नीयत से, इस जज्बे से बैठ के पढ़ें, इस नीयत और इस जज्बे से बैठ के पढ़ें कि या अल्लाह, इसकी जो पहले नीयत सुन ले जरा गौर से, ऐ अल्लाह जो इसकी तासीर, ताकत, बरकत और कमाल तूने सारे के सारे आले रसूल, आका कमली वाले, आले रसूल, असहाब रसूल,
اولیاء صالحین غوث کتب ابدال کلندر نقیب نجیب ابرار کاملین کو تو نے عطا کی، اور اے اللہ ایک وہ تاثیر اور طاقت ہے جو تیرے علم میں ہے۔ اللہ مجھے تیرے علم والی طاقت اور تاثیر بھی چاہیے، تیرے، میرے ساتھ بولیں، تاثیر بھی چاہیے، پھر بھی میں اللہ مطمئن نہیں ہوں، میرے اندر طلب زیادہ ہے، تڑپ زیادہ ہے۔ تو بندے پھر کیا مانگتا ہے؟ اللہ پوچھے تو یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق اس کی تاثیر بھی عطا فرما، اس کی طاقت بھی عطا فرما، اس کی برکت بھی عطا فرما، اور اس کا کمال بھی عطا فرما اپنی شان کے مطابق۔ بولیں آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ تھوڑا مانگتے ہیں یا زیادہ؟ جی زیادہ مانگے؟ تھوڑا کیوں مانگتے؟ اللہ کے خزانوں سے زیادہ مانگے اور بہت زیادہ مانگے، تھوڑا کیوں مانگتے؟ آئیں پھر اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اور درود بھی وہی پڑھیں گے جو ہمارا درود شفا ہے، جو ہر دفعہ پڑھتے ہیں، اور درود شفا بھی وہ ہے جو بڑی طاقتور چیز ہے، بہت باکمال چیز ہے درود شفا، بہت باکمال چیز درود شفا، بہت حیرت انگیز چیز ہے درود شفا، بہت حیرت انگیز۔ پڑھیں میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن مبارک وسلم۔ اب ایسا کریں، ہم نا ایک کام کریں، ہم نا چار چار پانچ پانچ کی ایسے ٹولیاں بنا لیں، ایسی جماعتیں، ٹیمیں بنا لیں، اور اس کو صرف 7 دفعہ بیٹھ کے آپس میں دہرانا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ایک وعدہ سناؤں، وعدہ، وعدہ غور سے سنیں، میں لفظ وعدہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان نشستوں کو، ان محفلوں کو تلاش کرتے ہیں، عرشوں سے آ کے ان محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اور عرشوں تک ان کی صفیں چلی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کے ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ یا اللہ تیرے بندے۔ فرمایا کیا مانگیں؟ جنت۔ پوچھا دیکھی ہے جنت کیا؟ یا اللہ نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے تو؟ میں اللہ اور مانگتے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتے، میں نے جنت ان کو دے دی۔ جب محبت ہوتی ہے نا، بات جان بوجھ کے بڑھائی جاتی ہے، اللہ نے بات کو جان بوجھ کے بڑھایا۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ جہنم سے۔ فرماتے ہیں فرشتوں انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ دیکھی نہیں، سنی ہے۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ اور زیادہ پناہ مانگتے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، جہنم سے نجات دے دی۔ اب اسی اسنا میں فرشتے ایک بات اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک بندہ تھا، وہ اس محفل میں ایسے ہی آیا تھا، اس کا مقصد یہ محفل نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی برکت، تاثیر، کمال، قبولیت اتنی ہے کہ وہ بھی بخشا گیا اور اس کو بھی جنت مل گئی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یاد رکھیں گے۔ اچھا یہ نیت کر لیں کہ میں 1 کروڑ پڑھنے کی آج سے نیت کر رہا ہوں، آج سے 7 دفعہ پڑھ لیتا ہوں، 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اور میں ایک بندہ تھا، اس نے 1 پیسہ رکھا اور کہا یا اللہ میں ساری عمر پیسہ پیسہ جوڑوں گا، اور جوڑ کے نا میں حج پہ جاؤں گا۔ پیسہ پیسہ جوڑتا رہا، موت آ گئی، حج نہ کر سکا۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک ایک فرشتے کو مقرر فرمایا جو اس کی طرف سے حج کرے گا، کیونکہ اس کے حج کا سچا جذبہ بھی تھا، ساتھ اس کی محنت بھی تھی، ساتھ اس کی طلب تڑپ اور سچا جذبہ تھا۔ آپ ایسا کریں، آج کروڑ دفعہ پڑھنے کی نیت کر لی نا، تو 7 دفعہ پڑھ لیں،
करोड़ में से 7 कम हो जाएगा, ऐसे ना। 1 करोड़ में कितना कम होगा? 7 दफा कम हो जाएगा ना। मसला हल हो गया, मसला हल। एक तो मसला ही हल हो गया और परेशानी ही दूर और काम बन गया, अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। करोड़ दफा पढ़ ले, अब पढ़ेंगे करोड़ दफा हैं, अल्लाह को अपनी सच्ची नीयत दिखा दे। एक दुर्वेश थे, एक दुर्वेश थे, वो कहने लगे भाई आओ मैं एक पल में आप हम सब सारी जन्नत में जाते हैं, एक नियत कर लेंगे जन्नत में जाएंगे। मैं कहा हजरत क्या? फरमाया ये नियत कर लें, अब नियत गौर से सुनिएगा, आज हमने करनी है, जरा गौर से सुनिएगा। फरमाया ये नियत कर लें, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, या अल्लाह जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, ना मैं तुझे नाराज करूंगा ना मैं तेरे हबीब को नाराज करूंगा। अच्छा, अगली नियत क्या की? या अल्लाह मेरी जब तक जिंदगी रहेगी मैं तुझे राजी करूंगा और तेरे हबीब को राजी करूंगा, कोई पल मेरा खताओं में नहीं गुजरेगा, हर पल मेरा वफाओं में नेकियों में गुजरेगा। या अल्लाह मैं मौत तक, मेरी मौत को 100 साल जिंदगी दे या 1000 साल जिंदगी, मैंने ये नियत कर ली, इसी कैफियत में जिंदगी गुजारूंगा। आप भी कर लें, मैं भी कर लूं। कर ले, कर ली, कर ली नियत। तो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा क्या लाया? या अल्लाह कुछ नहीं। अल्लाह पाक फरमाएंगे नियत की थी? या अल्लाह की थी। अब कितनी बड़ी बात है, आपने तो हुज्जत दलील बना ली। क्या बना ली? क्या बना लिया? हुज्जत और दलील बना लिया आपने। आपके पास हुज्जत है, या अल्लाह मैंने नियत की थी कि पल भर भी मैं तुझे नाराज नहीं करूंगा, हर लम्हा हर पल हर लहजा तुझसे राजी रहूंगा, तू मुझसे राजी मैं तुझसे राजी, तुझे राजी करूंगा। अल्लाह नियतों पे अजीबो गरीब फैसले कर देता है, नियतों पे, सिर्फ जज्बों पे और नियतों, जज्बों पे और नियतों। फरमाया जो बंदा शरबत का प्याला पी रहा, शरबत की बोतल, शरबत का गिलास पी रहा और चुस्की चुस्की शराब के जज्बे से पी रहा है, शरबत शराब के जज्बे से पी रहा, तो मैं अगर वक्त के खलीफा को पता चले तो उसको वो सजा दे जो शराब पीने वालों को दी जाती, उतने कोड़े मारे। क्यों? इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था, इसका जज्बा वही था। जज्बों का जिंदगी पे असर होता है, जज्बों का असर होता है। यहां तक बताऊं, अब हम बैठ के पढ़ते हैं, जरा एक चीज जरा सुन लेना। ये जो शिकारी कुत्ते होते हैं ये सुधाए जाते हैं, कुत्ते में खूनखारी का जज्बा है, चीजों को चीर फाड़ देता है, सुधाए जाते हैं। खरगोश के पीछे कुत्ता भागता है, खरगोश के पीछे भागता है और जानवरों के पीछे ही भागता है। यह खरगोश जब इसके हाथ आता है तो क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है, उसको पकड़ लेता है, उसको काटता नहीं है, नाखून नहीं लगाता। तो उसको देखा जाता है कि इस पे नाखून, इसके दांत तो नहीं लगे हुए। अगर नाखून और दांत लगे हैं तो समझ समझ लें कि गैर तरबियत याफ्ता कुत्ता है, तरबियत याफ्ता नहीं है। क्यों? कुत्ते के मिजाज में फाड़ना, चीरना, खून गोश्त का खाना है। जब उसने अपनी तबीयत को मालिक की तबीयत में ढाला, जब उसने अपनी आदत को मालिक की आदत पे ढाला और जब उसने अपनी तबीयत को मालिक के हुक्म के लिए कबूल किया, वहां ये कुत्ता शिकारी बना और बहुत कीमती बना और इसका शिकार हलाल हो गया। अब बोले, सिर्फ नियत, जज्बा। ये जो बाज शिकरे शाहीन होते हैं ये फाख्ताओं को, बड़े बड़े परिंदों को जाके शिकार करते हैं। तो फाख्ता, ये बाज जितनी भी हैं शाहीन, इनके मिजाज में भी चीरना फाड़ना है परिंदों को। तो जो परिंदा जाता है तो सुधाए हुए तरबियत याफ्ता जो होते हैं उनको हुक्म देते हैं, खास आवाज होती है, जाओ इस परिंदे के पीछे। वो क्या करता है, उस परिंदे के पीछे भागता है, वो ऊपर वो नीचे, उसको नीचे गिरा के ऊपर खुद बैठ जाता है, चीरता फाड़ता नहीं और मालिक का इंतजार करता है। अब तो उनके साथ बाकायदा सिम्में लगी हुई हैं, क्योंकि ये परिंदे गुम हो जाते हैं, सिम्में लगी हुई हैं, उनके ऊपर बैठ जाता है।
मालिक जाता है, उस परिंदे को लेता है, उसको पकड़ता है, देखता है इस पे चोंच नाखून तो नहीं लगे हुए। अगर चोंच नाखून नहीं लगे हुए तो समझ लें कि वो बहुत कीमती है और ये लाखों करोड़ों में बिकते हैं। रहीम यार खान की एक गरजमंद की बात भी बता दूं। एक गरजमंद था जिसे अल्लाह के लिए खर्च करना था, नफिल पढ़ रहा, रोजे रख रहा, अमाल कर रहा कि अल्लाह गैब से मेरी जरूरतें पूरी कर दे, गैब से जरूरतें पूरी कर दे। उसके बच्चे ने ऊपर कोई कबूतर रखे हुए थे, ऊपर कबूतर रखे, तो इनको कबूतरों की ना चीखने और फड़फड़ाने की आवाज आई। छत पे जो भागे तो कहीं से कोई शाहीन आया और वो कबूतर के शिकार के लिए कबूतर का बना हुआ जो डरबा था, कमरा था छोटा सा, उसमें घुस गया और कबूतर को अंदर शिकार कर रहा था। इन्होंने बाहर से बंद कर दिया, वो अंदर का अंदर। अब इन्हें पता चल गया कि ये है कोई शाहीन शिकरा या चील है, शक्ल एक तरह होती है, चील है। उन्हें कहा चील नहीं है, चील एक काम नहीं करती, ये शाहीन है। खैर हाथों पे कपड़ा चढ़ा जैसे करके कि जख्मी ना हो, उसको पकड़ लिया, पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। अब रहीम यार खान में ये अबू धाबी दुबई वाले शिकार खेलने आते हैं हर साल, और वो ये कीमती चीजें बड़ी कीमत से देते हैं। इनको किसी ने कहा कि उनके जो बड़े हैं उनको दिखाओ तो सही, शायद ये कोई कीमती हो। उन्होंने दिखाया ना, उन्होंने कहा ये तो बहुत कीमती है, आपको कहां से मिला है? हमें तो घर से हमने पकड़ा है, तो बहुत कीमती है। ये तो हमारा जो है वो अरबाब जो बड़ा है, अरबी बोलने वाला, तो इसको पसंद करेगा। उसके पास ले गए। ये वाकया मैं आपको सुना रहा हूं कोई गालिबन 30 साल पहले का। उस दौर में 6 साढ़े 6 लाख रुपए उसने दिया था। और इसको जरूरत कितनी थी? पता है इसको जरूरत कितनी थी? मेरे ख्याल में इसको जरूरत 18-19 हजार रुपए की थी। अंदाजा ऐसे है, 18-19 हजार ही या 20-30 हजार की होगी, चलो इतना कह दें। इतना थी। और अल्लाह से जब मांगा, और मांगने की इंतहा कर दी कि अल्लाह मेरी गैब से जरूरत पूरी कर। अल्लाह तू असबाब का मोहताज नहीं, मैं तो असबाब का मोहताज हूं, तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया? आप में से कोई बंदा भी जो अपना जिक्र कर रहा, उस जिक्र को जब गिड़गिड़ा के करेगा, और आज बहुत से होंगे जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की बुनियाद रख रहे होंगे कि हमने इंशाल्लाह 1 करोड़ पढ़ना है। होंगे ना? होंगे ना? इंशाल्लाह होंगे, होंगे इंशाल्लाह होंगे। जो इस अंदाज से पढ़ेगा, जरूरत है हजारों की, और 30 साल तकरीबन पुरानी बात है, और मिला 6.5 लाख, आज का 6.5 करोड़ मिला, और उसकी जरूरत पूरी हो गई, और बाकी पैसे परेशान था कि करूं कहां। क्यों? अल्लाह से मांगा इतना, मांगा इतना, और यकीन से मांगा, और ध्यान से मांगा, और सच्चे जज्बे से मांगा, और सच्चे दर्द से मांगा, और सच्चे विजदान से ऐसा मांगा कि अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने फिर छोटा फैसला नहीं किया, बड़ा फैसला किया। कहा बड़ी दुआ बड़े फैसले, छोटी दुआ छोटे फैसले, बड़े जज्बे बड़े फैसले, छोटे जज्बे छोटे फैसले, बड़ी नीयतें बड़े फैसले। ये फिर अल्लाह से फैसला करवा लिए। अब आप भी करा लें, मैं भी करा लूं अल्लाह से फैसले। तो आज 1 करोड़ दफा पढ़ने की नियत कर ली। अब उसमें 7 दफा पढ़ेंगे, 7 दफा, 7 दफा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? 7 दफा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 7 दफा, हैं? तो 1 करोड़ में 7 दफा कम हो गया, बाकी बाकी जो है, बाकी थोड़ा सा रह गया। बाकी कितना रह गया? थोड़ा सा रह गया। देखो ना, 1 करोड़ में 7 दफा तो खत्म हो गया। हंसते हैं, मुझे देख के हंसते हैं, कहते हैं ये कैसी बातें करता है। और अल्लाह के लिए कोई देर है? अल्लाह चाहे पल में आनन फानन,
میری دل جاری کر دے، میری زبان جاری کر دے، میرا قلب جاری کر دے. ہاں بس چلیں جی. پھر اب درود پاک پڑھا ہے نا، اب آپس میں ایسے مل کے اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں. 4 5 10 کٹھے ہو جائیں ایسے. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص لا الہ الا هو وهو رب العرش العظیم لقد جاءکم رسول عزیز علیہ حریص تولوا فقل حسبی لا الہ رسول عزیز علیہ حریص فقل حسبی لقد جاءکم رسول عزیز حریص فإن تولوا فقل حسبی لا الہ جاءکم رسول مومنین رو لقد جاءکم رسول جاءکم حریص قد جاءکم رسول علیکم بالمؤمنین فقل حسبی اللہ فإن تولوا شلاشی. ماشاءاللہ پڑھ لیا. چلو جی، آپ نے آج سے 1 کروڑ پڑھنے کی نیت کی. آپ کو اس نیت میں مبارک ہو، اس جذبے پہ مبارک اور اس ابتدا پہ مبارک. اچھا اس پہ ایک نیت کر لے کہ انشاءاللہ زندگی میں کبھی اس نیت کو کرنے کے لیے تسبیح خانے میں 12 لڈو آ کے رکھ دوں گا. 1 لڈو منت مراد کا خود لے لوں گا، 11 رکھوں گا. جو لے گا وہ بھی نیت کرے گا کہ میری مراد پوری ہوگی تو میں یہاں تسبیح خانے میں آ کے 12 لڈو رکھوں گا. وہ بھی یہ نیت کر لے. آپ بھی کر لیں کہ انشاءاللہ میں تسبیح خانے میں جو ہے وہ 12 لڈو رکھوں گا. 1 خود لوں گا، 11 رکھ دوں گا. کیا خیال ہے اگر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ ایک نیت اور کر لیں؟ یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم 1 کروڑ پڑھیں گے، اپنی نسلوں قیامت تک کی طرف سے پڑھیں گے اور اپنے لیے پڑھیں گے. نیت بڑی ہو گئی تو ثواب بھی بڑھا، نیت بڑی برکت بھی بڑھی، اور نیت بڑی تو انشاءاللہ اس کی عطا بھی بڑھی. تو کر لی نیت، واقعی کر لی. اب یہ سارا ثواب ہم پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کر دیں، اپنے پیاروں کو، اپنے بڑوں کو، ان کو ہدیہ کر دیں. جب سے میں نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے مجھے لوگوں نے کئی واقعات سنائے ہیں، کئی مشاہدات بتائے ہیں، اور لوگوں نے کئی چیزیں مجھے بتائی ہیں کہ جب سے آپ نے یہ ہدیہ کرانا شروع کیا ہے خواب میں آ کے رشتہ دار اور پیارے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خواب میں آ کے خوشخبریاں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اس لیے عرض کیا کرتا ہوں
अपने प्यारों को ना भूलना, अपने मरहूमीन को ना भूलना, ना भूलना, कभी ना भूलना। उनकी कब्रों को ना भूला करें, जाया करें। फूल लेके जाना जरूरी नहीं, अंदर और नीचे के फूल बहुत जरूरी है। ऊपर के फूल तो खुश्क हो जाते हैं और कब्रिस्तान वाले जमा करके इसको खुश्क बेच देते हैं। अंदर के फूल, वो अंदर के फूल, ये कलमा है, दरूद है, अमाल है, सदका है, खैरात है, हदिया है। ये अंदर के फूल हैं जो कभी ना कुमलाते हैं, ना मुरझाते हैं, ना इनकी खुशबू जो खत्म होती है। तो सादिक इसलिए आता है, उनके मुंह से हमेशा सच ही निकला है और सच्ची राहों पे रहे हैं वो, और सच्ची जिंदगी पे रहे हैं, और उन्होंने उम्मत को, इंसानियत को सच्ची राहें दी हैं, सच्ची जिंदगी दी है, सच्चे बोल दिए हैं और सच के अमल बताए हैं और सच के वजीफे बताए हैं। वो सच्चे थे, सच्चों के सच्चे थे, हमेशा वो सच्चे थे। इसलिए उनके नाम के साथ सादिक आता है, सादिक। और ये मेरे कमली वाले, आका कमली वाले की निस्बत है सादिक। वो खुद सच्चों के सच्चे थे। तो वो फरमाते हैं कि इसका जो थोड़ा सा फायदा है वो ये है कि फकीर से शहंशाह बना देता। बहुत कमाल चीज़ है। और मैंने इब्तदा में एक बात अर्ज की, उसको फिर सुने कि जितने भी बादशाह गुजरे हैं, अल्लाह वाले बादशाह, कोई बादशाह ऐसा नहीं कि उसकी ज़िंदगी के मामूलात में, उसकी ज़िंदगी के वज़ाइफ में, उसकी ज़िंदगी के विरद में और उसकी ज़िंदगी की तरतीब में ये आयत ना हो। कोई भी बादशाह आज तक ऐसा नहीं गुजरा। उनकी ज़िंदगी में ये थे, ये चीज़ है, उसकी ज़िंदगी में शामिल है, उसकी ज़िंदगी में शामिल है। और फिर मैंने अर्ज़ किया था कि एक साहब कहने लगे कि मैं बैठा था कब्र पे, उनको हदिया दे रहा था, तो फरमाया मुझे ये दो। और जब ये पढ़ना शुरू किया फिर घंटों गुजर गए, फिर पता ही न चला और कब्रिस्तान के सारे अहवाल मेरी आंखों के सामने खुल गए आंखों के सामने। और एक बात और मैंने अर्ज की, इस वजीफे में दराजी उम्र है। उम्र को दराज करना, उम्र में बरकत इसी वजीफे में, यानी इन दो आयात में है। रिस्क इन दो आयात में है, तस्खीर इन दो आयात में है, रिश्तों की तंगियां ख़त्म करना इन दो आयात में है, और ज़िंदगी में सहूलतें, आफियतें इन दो आयात में है। बहुत अजब चीज़ है, बहुत कमाल। अल्लाह 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 अल्लाह
اللہ 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 آمین آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار وادخل الجنة مع الابرار وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم واقعاتا کواقعات الولید اللہم اکفناہم بما شئت بمن شئت وکیف شئت اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہ ہماری حاضری قبول فرما مولا ہماری حاضری قبول فرما آقا ہماری حاضری قبول فرما ہمارے قدم قدم کو قبول فرما ہماری سانس سانس کو قبول فرما ہمارے ہر لمحے کو قبول فرما اس قبولیت کی برکت سے ہمارے سارے کام بنا دے ہمارے سارے کام بنا دے ہمیں کامل ایمان دے دے کامل اخلاص دے دے اور کامل اخلاق دے دے اور کامل برکت اور عافیت عطا فرما برکت اور عافیت عطا فرما برکت اور عافیت عطا فرما اے اللہ تو کریم ہے جتنی بھی تیری بندیاں اور بندے دور پریس ہیں دعاؤں میں آمین کہہ رہے اللہ ان کی سسکیاں ان کا رونا ان کا گڑ گڑانا
ان का भिखारी बनना, उनका इस इंतज़ार में रहना, उनका इस इंतज़ार में रहना कि हमारी दुआएं कबूल होंगी। आज शब जुमा है, तस्बीह खाने में सारी फरियादी जमा होंगे, तस्बीह खाने में रोने वाले गिड़गिड़ाने वाले जमा होंगे। आज हम भी और रोने वालों में शामिल हो जाएं, उन गिड़गिड़ाने वालों में शामिल हो जाएं, उन भिखारियों की सफ में हम भी शामिल हो जाएं, तो हमारी भी सुनी जाएगी, हमारी भी दुआएं कबूल होंगी, हमारी भी फरियादें दूर कबूल होंगी। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल कर ले, सबकी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह जो मांगा अता कर दे, जो नहीं मांगा अता कर दे। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। दुनिया दे दे, रिस्क दे दे, सेहत दे दे, बेटे दे दे, औलाद दे दे, नस्लें दे दे, राहतें दे दे, रहमतें दे दे, आफियतें दे दे, दुनिया आखरत की खैरें दे दे, दुनिया आखरत की बरकतें दे दे। हमारे पल पल को कबूल कर ले, तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुस्सत दे दे। गैबी निज़ाम मुतवज्जे फरमा, गैबी निज़ाम मुतवज्जे फरमा, गैबी निज़ाम मुतवज्जे फरमा। गैब से सारी दरवाजे खोल दे, गैब से सारे मसले हल कर दे और गैब से सारी नाकामियां दूर कर दे। अल्लाह हमारे हर सांस को कबूल कर ले। और जितने इस मजमे में तेरी बंदियां बैठी हैं, बंदे बैठे हैं, इनके हर आमीन को 70,000 आमीन की तरह कबूल फरमा, 70,000 आमीन की तरह कबूल फरमा। और उस आमीन को 70,000 बरकतों के साथ जोड़ दे, 70,000 रहमतों के साथ जोड़ दे और 70,000 मुरादें दे दे, 70,000 मुरादें दे दे और 70,000 बरकतें दे दे और 70,000 ज़रूरतें पूरी कर दे और 70 नस्लों को दर दर का भिखारी होने से बचा दे। अल्लाह करीम आका, सखी आका, तेरे बंदों ने 1 करोड़ दफा सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात की आज बुनियाद रखी है। इनको तू ही पूरी कराएगा अल्लाह, तू ही पूरी कराएगा अल्लाह। पूरी भी करा अल्लाह, उसकी तासीर भी दे अल्लाह, उसका फायदा भी दे, दुनिया आखिरत में नफा भी दे और दीदार मुस्तफ़ा भी अता फरमा। अल्लाह इस वजीफे से तो हज उम्रे होते हैं, इस वजीफे से दुनिया आखिरत बनती है, इस वजीफे से खैरें और बरकतें मिलती हैं। मौला किसी को महरूम ना फरमा, मौला किसी को महरूम ना फरमा, सबको अता फरमा। दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमा, दुनिया आखिरत की खैरें अता फरमा और दुनिया आखिरत की सआदतें अता फरमा। कबूल कर ले, महबूब कर ले, मंजूर कर ले। बस बिन मांगे दे दे, बस बिन मांगे दे दे, बस बिन मांगे दे दे। जो अभी मांगा दे दे, जो आइंदा मांगा दे दे, जो फिर मांगा दे दे। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरातिहि व अहले बैतिहि व इतरातिहि व अहले बैतिहि व इतरातिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।